वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो लेक्चर आपको मिल रहे हैं उनको पढ़ रहे होंगे और लेक्चर को पढ़ते समय आप उनको नोटबुक में नोट भी कीजिए। तो यहाँ कुछ बातें आपके काम के लिए हैं कि लेक्चर को जो है एक बार पूरा देखना, देखने के बाद में उसे नोटबुक में नोट करना और फिर नोट करने के बाद में उसको एक बार फिर रीड करना, उसको पढ़ना। फिर जो डेरिवेशन, जो टॉपिक आपको करवाया गया है उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उस टॉपिक से रिलेटेड उनको सॉल्व करना। इसके बाद डेरिवेशन में यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं तो जो है उनको अंडरलाइन करना, ठीक है, जिससे कि उनको बाद में हम समझ सकें। ये एक ऐसा समय है कि इस समय पर हम आपकी जो क्लास ले रहे हैं तो उस केस में आप हमारे ऑब्जर्वेशन में तो नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में आपको खुद को ही अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, अपना खुद का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं ये प्रॉपर टाइम के ऊपर आप इनको देखते जाइए और इनके नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नोट्स बनाते समय हम हर लाइन से हम गुजरते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें जो आपको बताई जा रही हैं उनको आप मानेंगे और ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में समय का पूरा सदुपयोग करेंगे। तो अब हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged non-conducting sphere. Clear? To find out electric field intensity due to uniformly charged non-conducting sphere. Suppose आपके पास में कोई सॉलिड प्लास्टिक की बॉल है। उस सॉलिड प्लास्टिक की बॉल को वो नॉन कंडक्टिंग है लेकिन उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके जो है होल वॉल्यूम के अंदर। जब मैं उसको बालों से रगड़ देता तो फिर ये आपके पास में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल बन जाएगा। और ये जो स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। उससे पहले भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है, पिछले वाला ये आर्टिकल था। टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर, देयर आर थ्री केसेस। फर्स्ट, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द चार्ज्ड स्फीयर, when point lies at the surface of the sphere, and third is when the point lies inside the sphere. So there will be three cases. So we take first case is when the point is outside the charged non-conducting sphere. Clear? This is first point. So we consider this is a non-conducting sphere of radius r and charge is uniformly distributed in whole volume of this spherical portion.
But we have to find out. We have to find out electric field intensity at this point by using Gauss law. This is application of Gauss law. So we have to consider a Gaussian surface, and the Gaussian surface will be spherical. So we consider this is a spherical Gaussian surface. Spherical Gaussian surface. Clear? Now point is P, and from center this distance is equal to small r. But we consider this is small area element ds, then direction of ds will be radially outwards. Radially outwards. So this is ds, and we consider the electric field intensity at point P, which is E, and charge distributed in whole volume supposed to be Q. Then now we consider a uniformly charged non-conducting sphere having charge Q. Clear? Or volume charge density rho. We consider a uniformly charged non-conducting sphere of radius small r having charge q or volume charge density rho. We have to find out electric field intensity at point P where OP equal R. OP, this point is P. So we can say that small r is greater than capital R. R is capital R. So this is first condition. When small r is greater than capital R, then point will be situated at outer side of the spherical portion. Clear? तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं. There is first point in this article is when the point is outside the charged non-conducting sphere means small r is greater than capital R. Clear? Now we consider a uniformly charged non-conducting sphere of radius capital R. इसकी रेडियस कैपिटल R है, having charge Q or volume charge density rho. We have to find out electric field intensity at point P, for which we consider an imaginary spherical surface of radius
of radius small r. क्लियर? दे ये आपके पास में इसकी जो है वो फॉर्मेलिटीज हो गई कि इसमें क्या है, हमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट E. तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं. अगेन नेक्स्ट विल बी the outgoing flux. This is a small area element ds. We have to find out electric field intensity at point P, which is supposed to be capital E. तो सबसे पहले हमें इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और इससे निकलने वाला जो फ्लक्स निकालना पड़ेगा तो फिर उसके बाद में कंप्लीट फ्लक्स निकालना पड़ेगा. तो फिर हम ये लिखेंगे द outgoing flux through complete imaginary spherical surface. By definition of electric flux, so phi will be integration of E dot ds. Clear? And phi will be integration of E ds cos theta. But what is angle between E and ds? So for point P, E and ds both are in same direction, but E is parallel to ds at point P. So theta equal 0 degree. Result will be phi integration for complete surface E ds cos 0. Then phi equal E ds cos 0 1. But E is magnitude of electric field intensity at this imaginary surface. So this is constant phi E integration of ds. Clear? But phi this is equal to E into the integration of ds for this surface having radius small r. So this is a spherical surface. What is total surface area of a sphere? This is 4 pi r square. Clear? Then 4 pi r square integration of ds equal 4 pi r square. For E phi equal E into 4 pi r square. This is equation first. Clear? Now ये जो हमने फ्लक्स निकाला, ये फ्लक्स आया बाय डेफिनेशन, बट बाय यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स जो है वो सिंगल स्टेप में ही आ जाता है. तो मैं फ्लक्स ही निकालूंगा, लेकिन अगले वाले केस में तो वो कैसे, तो आप इसको नोट करते जाइएगा. इसके जस्ट आगे मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए by using Gauss's law, phi equal q upon epsilon naught. This is equation second. ये फ्लक्स किससे आया? बाय डेफिनेशन. ये फ्लक्स किससे आया? बाय गॉस लॉ. लेकिन बोथ आर सेम. तो फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second, result will be E into 4 pi r square. This is equal to q upon epsilon naught. इस E into 4 pi r square के इक्वल q upon epsilon naught कर दिए. But you have to find out electric field intensity E. Then
result will be E equal Q upon 4 pi epsilon naught R square. This is equation third. Clear? Now, if we write this equation in vector form, so we have to consider a unit vector along OP. So in vector form, E vector equal Q upon 4 pi epsilon naught R square R cap unit vector along OP. क्लियर? ये आपके पास में वेक्टर फॉर्म हो गई इक्वेशन नंबर 4. But this is an example of volume charge distribution. So in terms of volume charge density, so in terms of rho, how can write this equation third? देखिए y using equation third. E equal Q upon 4 upon 3 pi R cube multiply by 4 upon 3 pi R cube upon 4 pi epsilon naught R square. इक्वेशन थर्ड पर ध्यान दीजिएगा. मैंने 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दिया, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया. यदि आप लोगों की नहीं जचता है तो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब को इससे कैंसिल कर दो और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर वापस वही बच जाएगा. तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लेकिन ऐसा करने से यहां फॉर्म चेंज हो गई. ये आपके पास में जो टर्म होगी, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो. क्यों? व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? द चार्ज एग्जिस्ट पर यूनिट वॉल्यूम. तो दिस इज टोटल चार्ज Q और दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सो वी कैन राइट रो. इसकी जगह हम रो लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट बात क्या आएगी देखिए, E इक्वल रो. तो इसकी जगह तो रो हो गए, 4 इज कैंसिल आउट, पाई इज कैंसिल आउट. तो रिजल्ट क्या रहा? रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन आर स्क्वायर. 3 एप्सिलॉन आर स्क्वायर. कैसे? दिस इज इक्वल टू रो. क्लियर? यहां क्या रह गया? 3, तो अपॉन में 3 चला गया. तो फिर आर क्यूब रो आर, ये रो हो गया, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. क्लियर? दिस इज इक्वेशन 5. कौन से टर्म में आ गई? रो की टर्म में आ गई. अगेन इन वेक्टर फॉर्म, E वेक्टर इक्वल रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल आर इंटू आर कैप. दिस इज इक्वेशन 6. तो ये चार्ज के टर्म में है, ये चार्ज के ही टर्म में वेक्टर फॉर्म में है, और यहां से हमने वो प्रोसेस लागू की जिससे इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में रख सकते हैं, और ये उसकी वेक्टर फॉर्म हो गई. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई हमारे पास पहले वाले केस में, वो इतनी फॉर्म्स में लिखी जा सकती है. लेकिन फिर भी यहां एक बात देखें कि व्हेन पॉइंट P lies outside the non-conducting charge sphere, in this situation electric field intensity E inversely proportional of square of distance. This implies
क्या शिक्षा मिलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड के लिए वो स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? नाउ अब यहां इक्वेशन पे ध्यान देना। क्या दूसरे वाले में ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। क्यों? अगले वाला आर्टिकल कौन सा करना जा रहे हैं हम? व्हेन पॉइंट लाइज एट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो वी टेक सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, when the point lies at the surface of uniformly charged non-conducting sphere. This is second point. It means small r is capital R. This is second point. When the point lies at the surface of uniformly charged non-conducting sphere, ये पॉइंट P जो है वो इस पे आ जाए तो इस केस में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो फिर हम कैसे करेंगे? देखिए इक्वेशन कौन कौन सी है हमारे पास। इक्वेशन है एक तो थर्ड और ये इक्वेशन है फिफ्थ। इनमें हम स्मॉल r की जगह यदि हम कैपिटल R पुट कर दें तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर्टिकल सरफेस के लिए बन जाएगा। तो फिर बाय यूजिंग इक्वेशन 3 and 5 we put small r equal capital R। तो 3 जो इक्वेशन वहां है वो कैसे हो जाएगी? देखिएगा, ES इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r की जगह क्या पुट कर दिया? कैपिटल R स्क्वायर पुट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां आ गई? सरफेस पे आ गई। तो फिर ये इक्वेशन तुम्हारे पास में कितनी हो गई? 7। ठीक है, यहां इक्वेशन कौन सी थी? बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड। नाउ वी हैव टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस। कैसे? इसके फॉर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। तो इक्वेशन जो इसमें पुट करेंगे हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो वो कैसे आएगा? देखिए, तो फिर स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R पुट कर दें तो ES स्मॉल r की जगह ये कैपिटल R स्क्वायर। नाउ R square is cancelled, तो result will be ES equal rho R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में 8। और किसका यूज किया था? यहां यूज किया था बाय यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ के लिए। इस तरीके से ये दो केसेज हमारे पास हो जाते हैं। तो सरफेस के लिए चार्ज की फॉर्म में, सरफेस के लिए जो है वो वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। तो अब आप इन इक्वेशन को कंटिन्यूटी से उतार सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है।
एक बार जब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा था, आउटसाइड, एक बार कहाँ पर लाई कर रहा था, एट सरफेस। अब हम एक और जो है पॉइंट लेंगे कि जब एक और सिचुएशन लेंगे जब पॉइंट कहां पर लाई करता हो, इनसाइड। तो आप इनको तो नोट कीजिए और इस पे ध्यान दीजिए। तो फिर नेक्स्ट वी टेक पॉइंट थर्ड। What is third point? When the point is situated inside uniformly charged non-conducting sphere. When the point, this is third situation, when the point lies in, when the point lies in uniformly, in a uniformly charged non-conducting sphere। क्लियर? तो फिर इस सिचुएशन में ये हमारे पास में एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और ये कोई पॉइंट पी इनसाइड है। पहले आउटसाइड लिया, फिर सेकंड केस में हमने सरफेस पे लिया, अब हम इनसाइड ले रहे हैं। तो फिर यहां इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो सेंटर से वो स्मॉल आर है। तो फिर यहां एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करें। तो ये स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लें। ये पॉइंट पी पर, पी पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर और इसी में ये है ds वेक्टर और ये सरफेस, ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसके अंदर। क्लियर? बट ये जो इमेजरी सरफेस है इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना आएगा? तो इस फ्लक्स के लिए जो है उसी तरीके से बाय डेफिनेशन करना पड़ेगा। तो बाय डेफिनेशन हम ये कैसे करेंगे देखिएगा। तो टोटल फ्लक्स passing through imaginary spherical surface। तो what is total charge present inside this sphere? वो क्यों कंसिडर किया हमने? इसके अंदर टोटल जो और ये जो कैपिटल आर रेडियस का जो स्फीयर है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है? क्यों एग्जिस्ट करता है? लेकिन इसी के अंदर स्मॉल आर रेडियस की एक स्फेरिकल जो है पोर्शन हमने और कंसिडर किया। तो फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई डॉट ds। तो विच इज इमेजिनरी सरफेस? This is imaginary surface. This is given sphere, uniformly charged sphere. Then phi equal integration EDS cos theta. But again at point P, E and ds are parallel. But E parallel to ds means theta equal 0 degree. So phi equal
इंटीग्रेशन eds cos 0, eds cos 0, cos 0 1, then phi equal e integration of ds, but phi equal e into 4 pi r square. This will be same. ये वैसा ही होगा जैसा कि हमने पहले फर्स्ट केस में किया था. तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल 4 पाई r स्क्वायर. ये फ्लक्स आ गया किसकी वजह से? ये फ्लक्स आ गया जो है बाय डेफिनेशन इस इमेजरी सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसको आप नोट कर लीजिए.